Hello students, how are you all? I hope you guys all are well. I'm your teacher Mona, and today we will discuss the pronouns. In the previous lectures, we have discussed the nouns and the definition of the noun, the kind of the nouns, and countable nouns, uncountable nouns, proper nouns, common nouns. All these things we already have discussed in the previous lectures. And today we will discuss the pronouns. So what is the pronouns? First of all, you know that what are the pronouns. So pronouns are just the words that can be used at the place of the noun. That is called pronouns. Okay, like he, she, it, they are, their, them, all these kind of things like pronoun I, you, we. Okay, all these are the words are called the pronouns. Okay, and these pronouns we usually used at the place of the noun, because at the same passage, at the same sentence, in the same passage or in the same sentence, we can't use a noun or name again and again. The repetition is generally don't look good. That's why we usually use pronouns at the place of the noun. Okay, so in this paragraph, we will discuss the pronouns. Okay, let's start. That we have uh, Mr. Rahman, our neighbor, and he is very nice man. Okay, so Mr. Rahman is our neighbor. He is very nice man. So he is the pronouns, because he is using at the place of the noun. That's why he is the pronoun. He is the pronoun. Next we have Mrs. Rahman is also good lady. So Mrs. Rahman is also a good lady. Mrs. Rahman is a good lady. Okay, and she has a very good relationship with all her neighbors. Okay, so Mrs. Rahman, she is the pronoun, because she is using at the place of the Mrs. Rahman, and her also called the pronoun. Okay, and they have two children. They also called the pronoun, because they is using at the place of the Mr. Rahman and Mrs. Rahman, and they are my friends. We go to the same school. We often visit their house. So we go to the same school, okay, and we often visit their house. So they are my friends is called the pronoun. We go to the same school is the pronoun, okay, and we often visit their house is the pronoun, okay, and we also ours is the all these things are the pronouns, okay, and we have many kinds of the pronouns, like we have some nominative pronouns and we have some possessive case of pronouns also. So like ours is our possessive pronoun, hers is our possessive pronoun, their is our possessive pronoun, my, mine. Okay, we usually use my, mine, their. All these are called the possessive pronoun. Her, hers, ours. Okay, his is called or called the possessive pronouns. Okay, so you know that what are the pronouns, what are the possessive pronouns, what are the nominative case pronouns, and what are the any another kind of the pronouns. So the underlined word in the passage are used in the place of the nouns, and the noun phrases, the word he, she, her, Mrs. They refer to the Mrs. Rahman, Mr. Rahman, and the underlined words in the passage are called the pronouns. So I hope you are getting my point, and in this simply we can say the words, the group of the words that can be used at the place of the nouns is called the pronouns. Okay, so in this simple definition. Next we have, okay, now we have some exercise. Now try and find out the nouns which the following pronouns refer to in the passage. They in refer, they in the fifth sentence refers to, they in the sixth sentence refers to, my in the sixth sentence refers to, we in the seventh sentence refers to. So generally we want
We have to give the answer. So in the fifth sentence, they generally refers to, she has very good relationship with all her neighbors and they have two children. Mr. and Mrs. Rahman have two children. They are my friends. तो यहाँ पर ये जो दे जो है ये रेफर किसको कर रहा है? मिस्टर एंड मिसेस रहमान के जो चिल्ड्रन हैं उनको रेफर कर रहा है. दे आर माई फ्रेंड्स. ओके, सो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये किसको रेफर कर रहा है? मिस्टर एंड मिसेस रहमान्स चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पर हम लिख लेंगे children. Okay, in the sixth sentence we refers, in the sixth sentence they refers to. So in the sixth sentence, okay, in the, this is the fifth sentence, they have two children. So in the fifth sentence, they refers to Mr. and Mrs. Rahman. Okay, not the children's. uh, this is the thing you have to remember. Okay, only Mr. and Mrs. Rahman. And in the sixth sentence they refers to the Mr. and Mrs. Rahman's children. Okay, so Mr. and Mrs. Rahman children. And in the seventh sentence we go to the same school. They are my friends. My refers to is generally the person who are talking about. Okay, in this sentence, in this paragraph. Okay, तो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको जनरली लिख सकते हैं. माई इन द सिक्स्थ सेंटेंस रिफर्स टू दी पर्सन. और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ही, जो भी है आपका, who was talking about, who is talking. ओके, जो भी बात कर रहा है ना, जो बता रहा है उसके बारे में, उसका कोई नाम तो मेंशन किया नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग ही लिख सकते हैं इसको. एंड या फिर आई लिख सकते हैं, जो भी है. We in the seventh sentence refers to the. So we in the seventh sentence refers to the all children. Okay, in the seventh sentence we go to the same school. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं. All the children, सभी बच्चे. ठीक है. Dear in the eighth sentence. So where is the eighth sentence? We often visit their house. किसका house? Mr. and Mrs. Rahman का house. Okay, so there in the eighth sentence, house of Mr. and Mrs. Rahman. ठीक है. And ours in the eighth sentence refers to the, generally ours is in the eighth sentence refers to the, we go to the same school, we often visit their house and they also visit ours. So ours in the seventh sentence refers to the children, जिसके बारे में बात की जा रही है. Child, जिसके बारे में बात की जा रही है. यहाँ पर भी हम उस child के बारे में बात लिख लेंगे. Child who is talking. Okay, so in this sentence, this paragraph and your exercise is done, and I hope you easily understood that what is the pronouns. Okay, now we have pronouns of the different kinds. Okay, like we have I, we, you, me, as, you, my, mine, our, ours. So I already told about it, told you about that my, mine, our, ours, or called the possessive pronoun. Okay, so these are the possessive pronoun and these are the nominative pronoun. These are the nominative pronoun. Okay, and this is belongs to us, you, all these are the pronouns. Okay,
So these are the pronouns. And when we talking about the possessive pronouns, so what are the possessive pronouns? So possessive pronouns are like जब भी हम लोगों को क्या दिखाना हो, कोई पोजेशन दिखाना हो किसी भी चीज पर, जैसे कि ये बुक मेरी है, ये घर हमारा है, ये कार तुम्हारी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, उसका हक दिखा रहे हैं। तो जब भी हम लोग पोजेशन दिखाते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर पोजेसिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, दैट कार इज माइन, ओके, दैट कार इज माइन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोलेंगे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो ये माई, माइन, ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, इसी तरीके से हम आवर, आवर्स, योर, योर्स को ले सकते हैं, दियर्स को ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक हम लोग को नोट दिया हुआ है, द फॉर्म्स इन द फर्स्ट सेट आर यूज्ड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड हेंस दे आर नॉन द एज सब्जेक्ट फॉर्म्स, and those in the second sets are used as object in the sentence, so they are known as object forms, and those in the third set indicate relation or possession, so they are the possessive forms। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी possessive pronouns के बारे में, तो ये नोट में भी ये लोग वही चीज बता रहे हैं कि possessive pronoun जो है आपका क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर नहीं आया है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द अबव प्रोनाउंस इन देयर थ्री फॉर्म्स, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द प्रोनाउन। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस लिखना है आपका ही को यूज करते हुए, ठीक है, या हिज हर को यूज करते हुए हमें एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में क्या करना है, सेंटेंसेस को लिखना है। ठीक है, तो राइट सेंटेंस ऑफ योर own using the above pronouns in their three forms. Now complete the following blanks with appropriate forms or pronouns। तो यहाँ पर अब हम लोग को सेंटेंसेस लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग ही को सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ही को जब अगर हम यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड बॉय, सिंपल। हम लोगों ने यहाँ पर ही को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब अगर हम इसको ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हिम होगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आपका हिम होता है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब अगर हम ही को ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय, या ही इज, हम लोग लिख सकते हैं राम इज अ वेरी nice boy, and this book belongs to him। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बना देंगे। पजेसिव प्रोनाउंस में यूज करना है तो हम लोग और भी इसको यूज कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में हम कैसे लिख सकते हैं, दैट राम buys a car, his car, his car is very expensive। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पजेसिव फॉर्म में यूज कर दिया। तो जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया है, इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल वे में हम लोग को जब सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना होगा तो हम उसको सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे, सबसे पहले लेकर चलेंगे। जब हमें उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना होगा तो हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड जब उसी सेम सब्जेक्ट को हमें पोजेशन दिखाना होगा तो हम उसका पोजेसिव फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। तो इस तरीके से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपना सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। पजेसिव फॉर्म भी क्या होता है, हर होता है। तो हर और हर किसका पजेसिव फॉर्म होगा, ये दोनों पजेसिव फॉर्म किसके होंगे, आपके, ये दोनों पजेसिव फॉर्म होंगे आपके शी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका शी लिख सकते हैं।
तो हम लोग इसको ले लेंगे शी। ठीक है, इसी तरीके से इट, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी इट होता है, और पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, इसका पजेसिव फॉर्म भी इट होगा। ठीक है, इसके लिए और कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, दे पजेसिव फॉर्म क्या होगा इसका, दियर होगा, और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका, देम हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पर सेंटेंसेस बनाना हो तो आप लोग खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद सेंटेंस बना लीजिए। ओके, नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज। नाउ fill in the gaps in the following sentences with appropriate forms of the pronouns। तो अब pronouns के एक appropriate form को यूज करके fill in the blanks करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर आर अ गुड बॉय दिया हुआ है, तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे हम लोग कि कौन सा प्रोनाउन आ सकता है। आई के साथ में आर कभी नहीं आता है, ही के साथ में आर कभी नहीं आता है। ठीक है, और दे के साथ में आर आता है, मगर आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दे का यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे, यू का। You are a good boy. This sentence is the right. Okay. So इस टाइप से आप लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर अपने कॉमन सेंस से क्या करना है, सेंटेंसेस को बनाना है, गैप्स को फिल करना है। ठीक है, नाउ fill in the gaps in the following sentences with appropriate forms of the pronoun। My parents love, अब उसके पेरेंट्स है तो वो किसको प्यार करेंगे, किसी और को जाकर तो प्यार नहीं करेंगे, वो किसको प्यार करेंगे, उसी को प्यार करेंगे, तो माई पेरेंट्स लव मी। ठीक है, और क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस इज अ पेन, ये किसका पेन हो सकता है, दिस इज अ पेन हो सकता है, पर यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो दिस इज माई पेन। ओके, यहाँ पर हम और भी चीज यूज कर सकते थे, दिस इज योर पेन भी लिख सकते थे हम लोग, दिस इज योर पेन भी हो सकता था। ठीक है, दैट गार्डन इज, अब ये गार्डन किसका है, दैट गार्डन इज माइन, हम लोग लिख सकते हैं ये गार्डन मेरा है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं आवर्स, दैट गार्डन इज आवर्स, ये गार्डन हमारा है, या फिर डियर्स भी यूज किया जा सकता है, दैट गार्डन इज डियर्स, ये गार्डन उनका है। तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, किसी भी एक सिंपल एक सिंगल प्रोनाउन पर हम लोग को स्टिक नहीं होना है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। द फूड वॉज गुड, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ओके, इसके साथ में क्या होगा, इट होगा, फूड बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, वी एंजॉयड इट वेरी मच। अब फूड है ना, तो अनलिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो जब नॉन लिविंग थिंग यूज करते हैं तो उसके साथ में ही, शी, इट और दे का यूज नहीं करेंगे हम लोग सिंपली इट का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली इट का यूज किया, और हम लोगों ने क्या बना दिया, उसका प्रोनाउन बना दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है समझ में आ रही है, और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेंटेंसेस बनाना है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग सम अदर प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो अब हमें खुद से सेंटेंस बनाना है, हमें यहाँ पर अपने आप से सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, पजेसिव फॉर्म एंड पजेसिव फॉर्म यूज करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक चीज को यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हमें किस टाइप से सेंटेंस बनाना है वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो देखते हैं सब्जेक्ट फॉर्म में हम ही को यूज कर लेते हैं। ओके, ही ही इज अ गुड बॉय। सिंपल, हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करके सेंटेंस को बना लिया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोलना है, इसी को हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना है।
ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बनाना है हम लोगों को खुद से। ठीक है, तो देखेंगे किस टाइप से सेंटेंस हमारा बन सकता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे, श्याम बायस न्यू कार। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंड हिज कार belongs to him in a very classy way। सिंपल। तो श्याम ने एक न्यू कार खरीदी और ये कार जो है ये उससे बिलोंग करती है, बहुत ही क्लासी वे में ये बिलोंग करती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने सेंटेंस को बना लिया। अब यहीं पर हमको पॉजेसिव फॉर्म अगर यूज करना है, हिज हर देयर देयर्स यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं अपना, है ना। जैसे कि दे आर गोइंग टू दी पार्क, ओके, एंड दैट पार्क इज डियर्स। वो पार्क जा रहे हैं और वो पार्क किसका है, उन्हीं का है ना। तो वो पार्क जा रहे हैं और वो पार्क किसका है, उन्हीं का है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस को बना दिया। तो ये सिंपल वे में हम लोग इस टाइप से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस कैसे बनाना है, मैंने इस टाइप के सेंटेंस बनाए, आप लोग चाहें तो किसी और टाइप के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये सिंपली डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग किस टाइप के सेंटेंस बनाना चाहते हैं, या आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपके माइंड में सबसे पहले कौन सी चीजें आ रही हैं और आप किस टाइप से बनाना चाहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा टोटली। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। और ये हमारा जो प्रोनाउन वाला चैप्टर था ये यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। एंड अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रोनाउंस का अगर क्विक रिवीजन ले लें, तो प्रोनाउंस के अगर मैं क्विक रिवीजन की बात करूँ, तो जब भी हम लोग प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे तो प्रोनाउंस वो क्या होंगे, आपके ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होंगे जो कि यूज किए जाएंगे एट द प्लेस ऑफ द नाउन। और वो प्रोनाउंस क्या हो सकते हैं, हमारे पॉजेसिव केस के प्रोनाउन हो सकते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हो सकते हैं। एंड सिंपली प्रोनाउंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ही शी इट आई वी यू दे आर देयर आवर्स हर्स, ओके, अस। तो इस टाइप के प्रोनाउंस जो है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि आपके अलग अलग कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। और इसी टाइप से प्रोनाउंस को हम लोग पैसेज में पहचान सकते हैं। पैसेज रीड कर रहे हैं जब हम लोग पहचान उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस हैं, और उनका पॉजेसिव केस क्या होगा, उनका नॉमिनेटिव केस का क्या होगा, उनका सब्जेक्टिव केस क्या होगा। ये सारी चीजें हमें इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोनाउन का चैप्टर, जो कि यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास में एडजेक्टिव का चैप्टर है। सो एडजेक्टिव का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि सिंपली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आपके वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी कुछ क्वालिटी अगर बताते हैं, है ना। जैसे कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत खूबसूरत है, या वो बहुत खुश रहता है, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो बहुत क्लेवर है। तो इस टाइप से जब भी नाउन की कोई क्वालिटी बताएगा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या कोई एक सिंगल वर्ड, तो वो सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली हैप्पी, गुड, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्राइट, ब्यूटीफुल, ये सब क्या होती हैं, किसी न किसी पर्सन की क्या होती है, ये क्वालिटीज होती हैं। तो जब ये क्वालिटीज बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, शो करी जाती हैं, तो वो एडजेक्टिव के थ्रू करी जाती है, और इन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव से कोई आपका डिफाइन नहीं है कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे, उनकी कुछ कैटेगरी डिफाइन नहीं है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन द योर लैंग्वेज।
आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पर और उनके स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर अब हम लोग को एक पैसेज दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर हाक इज अ हैप्पी मैन दिया हुआ है। तो वो भाई मिस्टर हाक जो है वो बहुत खुश इंसान है, तो हैप्पी क्या हो गया, उस इंसान की क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो वो क्या है, हैप्पी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही हैज एन इंटेलिजेंट वाइफ, उनकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये किसकी क्वालिटी हो गई, उनकी वाइफ की क्वालिटी हो गई कि भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम आर ब्राइट स्टूडेंट्स, तो वो सभी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी क्वालिटी हो गई कि वो सभी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये जो सारे वर्ड्स जो हम दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अलग अलग क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, आपका एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। दे आर जेंटल एंड पोलाइट, तो किसी जेंटल एंड पोलाइट होना भी क्वालिटी होती है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। देयर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देम, दे कम ऑफ अ रिच फैमिली, तो उनके पेरेंट्स को उन पर गर्व है, तो वो उन पर गर्व है, तो वो भी एक क्वालिटी हो गई। तो वो कौन सी फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, तो फैमिली से तो सभी आते हैं, बट रिच से आ रहे हैं कि पुअर से आ रहे हैं, तो वो उनका एक स्पेसिफिकेशन है हो गया, उनकी क्वालिटी हो गई कि वो एक रिच फैमिली से आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दे आर नॉट एरोगेंट इन देयर एटीट्यूड, तो अब उनके एटीट्यूड में एरोगेंस है या नहीं है, ये भी उन पर डिपेंड करता है। तो वो एरोगेंट नहीं है, तो ये भी उनकी एक क्वालिटी है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, जो भी हमारे इसमें आए हुए हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो हमारे पैसेज में आए हुए हैं, ये सारे ही वर्ड्स क्या हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी नाउन की हमारी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, नाउन्स एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गए, अब एडजेक्टिव हो गए। तो नाउन सिंपली क्या करते हैं, आपके किसी भी टाइप के पर्सन, प्लेस और थिंग के जो नेम होते हैं उनको हम नाउन्स कहते हैं। उनकी भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि सिर्फ इतने ही नाउन होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल आइडिया, फीलिंग, किसी भी टाइप के जो भी आपके नॉर्मल नेम्स होते हैं, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी थिंग होगी, वो सब क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। तो हम उनको एक सिंपल एक बुक में कवर भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमने प्रोनाउंस के बारे में बात करी, तो प्रोनाउंस वही वर्ड है जो कि आपका नाउन के प्लेस पर यूज हो रहा है, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। और उसमें भी आपका एक जो है उसमें भी आपकी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं है, वो भी क्या हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एडजेक्टिव है हमारे, एडजेक्टिव के भी क्या है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें ये कुछ एडजेक्टिव्स आपको फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी ना किसी नाउन के क्वालिटी को यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एडजेक्टिव जो है वो डिफाइन हो सकते हैं। और आगे हम लोग जैसे देखें, सी व्हाट नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड अदर एडजेक्टिव इन द पैसेज डिस्क्राइब, तो ब्राइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये बताना है हमें। जेंटल एंड पोलाइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्राउड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ब्राइट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ब्राइट क्या हो जाएगा हमारा, जनरली एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास में, और क्या है, जेंटल एंड पोलाइट डिस्क्राइब कर रहा है, उनके बच्चों को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत ही जेंटल और पोलाइट है। प्राउड किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो उनमें उनके जो मदर फादर है वो क्या करते हैं, प्राउड करते हैं। तो ये सब क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी ना किसी को, तो इस टाइप से हम इनको फॉर यहाँ पर ले सकते हैं। रिच किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है। एरोगेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपका उनके जो बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। तो इस टाइप से ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग फिल कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो एडजेक्टिव है, इसका इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या है। तो अगर हम अपने डेफिनेशन को रिपीट करें तो आप ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के जो भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी क्वालिटी को दिखाते हैं, वही सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव्स का सिंपल इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोग को ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। एंड कल हम इस चैप्टर एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे। तो
और आज के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोनाउंस को कंप्लीट किया। कल हम लोग एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे। एंड एडजेक्टिव्स का आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल गया है, तो आप लोग अब एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपने घर जाकर एडजेक्टिव्स को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और जब आप लोग कल क्लास में आएंगे और हम लोग एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को एडजेक्टिव्स पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, जबकि आप लोगों को एडजेक्टिव्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा कल का लेक्चर होने वाला है एडजेक्टिव्स पर। आज का लेक्चर था प्रोनाउंस पर। तो आई होप आप लोगों को नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स सभी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। एंड इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हो रहा होगा। एंड अगर नहीं हो रहा है तो कुछ क्लासेस और अटेंड कीजिए, आप लोग का इंटरेस्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। सो ये लेक्चर था हमारा आज का, जो कि प्रोनाउंस पर था। कल हम लोग एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग खुद जाकर एडजेक्टिव्स को पढ़िए। एंड हम लोग मिलते हैं कल अपने न्यू लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।